kids. Today we are going to learn ninth standard Science 2 subject, chapter number 8, Useful and Harmful Microbes. So, useful and harmful microbes, we all already learn about different types of useful microorganisms like lactobacillus bacteria, rhizobium bacteria, and yeast. Now we will learn about antibiotic. In this video we will learn about antibiotics. So antibiotics means a carbon compound obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics. So antibiotic means we are found a carbon compound, we are obtain a carbon compound from some bacteria and fungi. मीन्स कुछ बैक्टीरिया एंड फंगी से कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं और वो कार्बन कंपाउंड्स हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं और प्रिवेंट करते हैं. मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो, उस पर कंट्रोल करते हैं कौन? एंटीबायोटिक. कुछ बैक्टीरिया एंड फंगी से जो कार्बन कंपाउंड्स फाउंड होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, वो हेल्प करते हैं डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. जस्ट लाइक मेडिसिन, समझ लो दवा. So antibiotics are discovery of the 20th century and have brought about a revolution in the field of medicines. Antibiotics are a revolution in the field of medicine. Even a disease like the tuberculosis means TB. So tuberculosis has been almost completely eradicated from the some of country. Now there are different types of antibiotics, broadband spectrum antibiotics and narrow spectrum antibiotics. So antibiotics mainly act against bacteria. antibiotics किसके अगेंस्ट काम करता है? बैक्टीरिया के. So antibiotic mainly act against bacteria. Some antibiotics can destroy protozoa. Some antibiotics are useful against by wide variety of bacteria. They are called broad spectrum antibiotics. Now example are ampicillin, amoxicillin, tetracycline and etc. When the pathogen cannot be identified even though a symptoms of disease are visible, broad spectrum एंटीबायोटिक आर यूज. मीन्स सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर डिजीज हमें नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिखाई देता है, नहीं पता चलता है, सो हम एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स देते हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज होता है. सो एम्पिसिलिन मीन्स ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स. एमोक्सिलिन मीन्स same related to the ampicillins with limited microorganism, and tetracyclines means it treated for a cholera. So broadband spectrum antibiotic mostly used for pathogens cannot be identified even though symptoms of disease are visible. मतलब जो symptoms disease के जो symptoms clearly नहीं आइडेंटिफाई होते हैं, नहीं समझ में आते, क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई होते हैं, तो उस टाइम पे हम ये एंटीबायोटिक्स देते हैं. कौन से? एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. सो एम्पिसिलिन मीन्स ट्रीटेड फॉर infection of urinary and respiratory tracts. Amoxicillin same related to the ampicillins, and tetracyclines for treatment for a cholera. So these are all the broadband spectrum antibiotic. Now next is narrow spectrum. So whenever a pathogenic microorganism is definitely known, मतलब हमें अच्छे से क्लियरली पता है कि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी डिजीज हुआ है किस बैक्टीरिया की वजह से, किसकी वजह से हुआ है, डेफिनेटली पता है. सो हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करते हैं. सो व्हेनेवर अ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली नोन, देन द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड. फॉर एग्जांपल अ पेनिसिलिन, एंटामाइसिन, erythromycin. Now penicillin
इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस। फंगस से हमें ये एंटीबायोटिक्स मिलता है, फाउंड होता है। तो पेंसिलिन इज ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस penicillin and is used for controlling the infection cause of bacteria like Staphylococcus, Clostridia and Streptococcus etc. Now medicines containing a penicillin are useful to treat certain bacterial infection of the ear, nose, throat and skin as well as disease like the pneumonia and स्क्रॉटलेट फीवर। मतलब नोज, ईयर, थ्रोट, स्किन, ये सब में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है तो मोस्टली हम पेंसिलिन यूज़ करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिलिन्स। नाउ कॉशंस मीन्स सावधानी, हमें मेडिसिन एंटीबायोटिक लेते टाइम पे कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सो एंटीबायोटिक अगर ये याद रखोगे, एंटीबायोटिक मीन्स मेडिसिन। सो मेडिसिन अगर वर्ड याद है तो हम वो इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन, सो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। मतलब जब डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं जो लेना है एंटीबायोटिक्स, हमें वही लेना चाहिए। डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। मतलब बिना डॉक्टर के बताए हुए हमें मेडिकल से कौन से भी एंटीबायोटिक्स, टैबलेट, पेंसिलिन वगैरह नहीं लेने हैं। सो डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द मेडिकल स्टोर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। Don't consume antibiotic on your own to treat common disease like the throat infection, common cold or influenza। मीन्स नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार जब होता है तो हमें अपने मन से ही एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। Even if you feel well, before completing our prescribed course of the antibiotic, you must continue and complete it। अगर हम एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हैं उसके कुछ ही टाइम के बाद अगर हमें अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, मतलब ठीक हो गए, तब भी हमें वो कंटिन्यू कोर्स करना है जब तक डॉक्टर ने कहा है तब तक। सो इवन यू इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग और प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक, मतलब उस एंटीबायोटिक के कोर्स को कंप्लीट होने के पहले ही अगर हमें ठीक महसूस हो रहा है, फिर भी हमें वो कंप्लीट करना है कोर्स कंटिन्यू। नाउ डोंट सजेस्ट टू अदर द एंटीबायोटिक विच वेयर यूजफुल टू यू। और किसी को सजेस्ट नहीं करना है कि अगर मुझे ये दवा ठीक कर दी गई है एंटीबायोटिक के खाने की वजह से, मगर मेरी डिजीज़ ये ठीक हो गया, सो तुम भी खाओ, तुम्हें भी ठीक हो जाएगा, ऐसा किसी को सजेशन नहीं देना। सपोज करो अगर मुझे टीबी हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, सो मैंने जो मेडिसिन खाया है सेम मेडिसिन मैं किसी और को नहीं दे सकती, ना ही मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम भी यही सेम मेडिसिन खाओ। सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस वी आर फॉलो फॉर एंटीबायोटिक्स। Now harmful microorganism. We already learn about a useful microorganism. Now we will learn about harmful microorganism. So in the harmful microorganism there is a fungi. Microscopic spores of fungi are present in the air. If there is a sufficient moisture, spores germinating on the cotton fabric, gunny bags, leather, wooden items, etc. The fungal hyphens fiber of the fungus penetrate deep in the material to obtain nutrition and to reproduce. This causes the material to wear become a weak. As a result, gunny bag, leather item like shoes, purses, belt, etc. on which fungi have grown don't last long. Wooden item also get spoiled. सो अभी कभी नोटिस किया होगा जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, गनी बैग्स, मतलब जो खाकी कलर के, ग्रे कलर की जो गोनी वगैरह होती है जिसमें राशन आता है, तो बारिश के टाइम पे अगर हमने उसको वैसे ही केयरलेस जैसे छोड़ दिया है, सो बिकॉज ऑफ मॉइस्चर उसमें थोड़े टाइम के बाद वाइट कलर के फंगस फॉर्म हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो वो जो लॉन्ग लास्टिंग उसका जो लीव जो ज़्यादा टाइम तक चलना चाहिए, वो क्या होता है, बहुत वीक हो जाता है और इजीली ब्रेक होने लगता है, फटने लगता है। अगर कभी नोटिस किया होगा, कॉटन का कपड़ा है, शूज़ है लेदर्स के, सो मॉइस्चर्स में होने के बाद उस पर जब वाइट कलर के फंगस आ जाते हैं, तो अगर हम उसको थोड़ा सा भी पकड़ते हैं, ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, तो वो ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो वो क्या है, ये आइटम्स सब जितने भी हैं वो वीक हो जाते हैं और वुडन आइटम्स ऑल्सो गेट स्पॉइल्स। So fungi is harmful. Now various species of fungi grow on food items like pickles, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी, etc. So फंगस पहले तो मैंने बताया कि वो फैब्रिक्स
चीज़ों पे होते थे, फैब्रिक्स, गुनी बैग, लेदर, वुडन आइटम्स, ये सब पे होते थे बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। अब कुछ फंगी ऐसे भी हैं जो फूड आइटम्स पे भी होते हैं। सो वेरियस स्पेसीज ऑफ फंगी ग्रो ऑन फूड आइटम्स लाइक पिकल, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी एक्सेट्रा। दे यूज द न्यूट्रिशन इन दिस फूड आइटम, मतलब ये फंगी अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं ये फूड आइटम से। सो दे यूज द न्यूट्रिशन इन दिस फूड आइटम फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगी रिलीज द mycotoxins, certain poisonous chemical। सो ये जो फंगस है, ये फंगी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब पॉइजनस केमिकल रिलीज करते हैं। कौन से, उसका नाम क्या है? माइकोटॉक्सिन्स। सो विच poisonous chemical release from the fungi? So your answer is mycotoxins। So mycotoxins, poisonous chemical, are released from a fungi. Now into the food, and thus food become a poison. Hence the food on which fungi have grown cannot be eaten। मीन्स फूड पे अगर ये फंगी ग्रो हो जाते हैं तो वो खाने लायक नहीं होता। सो फंगी कौन से पॉइजनस केमिकल रिलीज करते हैं? माइकोटॉक्सिन्स केमिकल्स। नाउ क्लोस्ट्रीडियम। सो क्लोस्ट्रीडियम, द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक्ड फूड, are Clostridium out of about 100 different species of the bacterial. Some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of human and other animals. So अभी हमने जो माइकोटॉक्सिन्स पढ़ा वो फंगी था, फंगी से पॉइजनस केमिकल रिलीज हुआ था। बट क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है वो कुक्ड फूड, जो बना हुआ खाना है, कुक किया हुआ खाना है, उसके ऊपर होता है। So the bacteria which spoil cooked food from the Clostridium out of 100 different species of the bacterium, some are free living in the soil, whereas some living in the alimentary canal of humans and other animals. Now these bacteria are rod shaped and produce the bottle shaped endosperm in adverse condition। मीन्स उस क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का जो शेप है वो कैसा है? रॉड शेप है। and produce a bottle shaped endosperm in the adverse condition. One special characteristic of this bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of the air because they grow in a anaerobic condition। Means anaerobic condition means they don't want to oxygen for a लिविंग, मतलब उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये एनारोबिक्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। कौन? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। एंड दे आर फाउंड इन अ cooked food। So these are all the example of species of Clostridium species: Clostridium tetani, Clostridium prefingers, Clostridium botulinum, Clostridium difficile। Now other harmful microorganisms। So other kinds of microorganisms like bacteria, virus, protozoa and fungi are also responsible for different diseases that affect the human। You have learned about the virus, which are smaller than bacteria and can grow the reproduce only in living cell। Let us see how they are harmful to us। Now the spread and prevention of the disease। So there are number of name of the disease, pathogens, mode of infection and prevention measure। So name of disease first, एड्स। एड्स किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू होता है। एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? मतलब नेम ऑफ डिजीज एड्स है, पैथोजेंस क्या है? वायरस, और मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन किस वजह से होता है? सो थ्रू
a blood and semen of the infected person and milk of mother suffering from AIDS. थ्रो ब्लड एंड सेमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब अगर किसी को एड्स हुआ है, सो द लिक्विड प्रोड्यूस बाय द मेल सेक्स ऑर्गन कंटेनिंग द सीड और स्पर्म नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग अ बेबीज, सो दिस पर्सन आर इन्फेक्टेड फ्रॉम द एड्स, सो अदर पर्सन ऑल्सो इन्फेक्टेड बाय एड्स. नाउ मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स, अगर किसी जो माँ है अगर उसे एड्स हुआ है तो उसके मिल्क में भी इसके कुछ वायरसेस मिल सकते हैं. नाउ प्रिवेंशन मेजर, हम इससे बचेंगे कैसे? प्रिवेंटिव मेजर मतलब इससे बचना कैसे है. सो सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड री यूज़ ऑफ नीडल एंड इंजेक्शन, मतलब जिसे एड्स हुआ है तो उसकी जो चीज़ें हैं उससे अवॉइड करना है. नाउ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इज पैथोजन इज वायरस, ये सब याद रखना है. एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मिसला एंड चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, these are all done by virus. Pneumonia, leprosy, cholera, these are all done by bacteria, bacterial infections है. मलेरिया इज अ प्रोटोजोआ, मतलब मस्कीटो वगैरह से होता है. डैंड्रफ, रिंगवॉर्म, स्कैबीज, फंगी, मतलब फंगस हो जाता है डैंड्रफ वगैरह, जो फफूंदी टाइप में वाइट वाइट लेयर्स दिखते हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो फंगल इन्फेक्शन है, फंगी. सो नाउ हेपेटाइटिस पैथोजन इज वायरस. मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये किसकी वजह से होता है? सो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, खराब पानी और फूड की वजह से. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, प्रॉपर ढंग से अच्छे से ढक के खाना रखना है और क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर पीना है. इन्फ्लुएंजा मीन्स फ्लू, फीवर. सो वायरस कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को हुआ है बुखार तो उसके कांटेक्ट में आने से हमें भी हो सकता है. प्रिवेंटिव मेजर, पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग द कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिस किसी को भी बुखार हुआ है उससे बच के रहना है, उसके पास नहीं जाना है, उसके कांटेक्ट में नहीं जाना है. मेस्लेस एंड चिकन पॉक्स, वायरस एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. मोस्टली जितने भी डिजीज होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ही होते हैं. सो मोस्टली एंड चिकन पॉक्स, कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. प्रिवेंटिव मेजर, वैक्सीनेशन, अनकंटेमिनेटेड वाटर, क्लीन फूड. वैक्सीनेशन मतलब एक वैक्सीन इंजेक्शन दिया जाता है चिकन पॉक्स वगैरह का जब बहुत न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तभी. नाउ ब्लड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू, H7N9, H1N1, ये याद रखना है. स्वाइन फ्लू H1N1 है, ब्लड फ्लू H7N9 है. वायरस एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स. प्रिवेंटिव मेजर इज पर्सनल हाइजीन, प्रॉपरली कुक्ड मीट, चिकन वगैरह जो भी है वो प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए. नाउ डेंगू डन बाय वायरस, मस्कीटो बाइट, मच्छर के काटने से होता है, मस्कीटो बाइट से होता है. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? क्लीनिनेस ऑफ द सराउंडिंग, प्रिवेंटिंग अ स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, मस्कीटो कंट्रोल, आसपास का जो सराउंडिंग है उसे क्लीन रखना है, पानी जमा नहीं होना चाहिए. नाउ निमोनिया, निमोनिया इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय द इन्फेक्टेड पर्सन. अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो उसके जो भी थूक वगैरह है, ड्रॉपलेट्स है, अगर वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं तो निमोनिया हो सकता है. नाउ वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, वैक्सीनेशन है निमोनिया का जो बचपन में दिया जाता है, और अवॉइड करना है इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब जिसे हुआ है उसके पास नहीं जाना, उसे अवॉइड करना है. नाउ लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब खुजली होती है, एक टाइप का स्किन डिजीज होता है, स्किन डिजीज बोल सकते हैं उसे. सो लेप्रोसी मीन्स स्किन डिजीज. इट्स ऑल्सो ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया की वजह से होता है. लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैं तो हमें भी वो हो सकता है. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग, मतलब उस पर्सन को अवॉइड करना है जिसे ये हुआ हो, लेप्रोसी. नाउ cholera, cholera also bacteria, contaminated food and water, clean food and preventive measure is clean food and water, मतलब क्लीन मतलब साफ़ सुथरा पानी और खाना चाहिए कॉलेरा से बचने के लिए. नाउ मलेरिया, मलेरिया पैथोजन इज प्रोटोजा,
मोड ऑफ इन्फेक्शन इज मस्क्यूटो बाइट अनक्लीन सराउंडिंग, मतलब आसपास गंदगी होगी और मस्क्यूटोज के काटने की वजह से मलेरिया हो सकता है. सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? क्लीनिनेस ऑफ सराउंडिंग, प्रिवेंटिव स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कंट्रोलिंग मस्क्यूटोज. नाउ डैंड्रफ, रिंगवर्म एंड स्कैबीज, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है, फंगी. कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन ऑन हिज हर बिलोंगिंग लाइक क्लोथ्स, कपड़े वगैरह, अगर हम किसी को रिंगवर्म हुआ है, खुजली वगैरह हुई है, दाग हुआ है और उसके कपड़े अगर हम पहनते हैं तो वो हमें भी हो सकता है. नाउ प्रिवेंटिव मेजर इज पर्सनल हाइजीन, खुद साफ सुथरा रहना है. अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, वो पर्सन से दूर रहना है. मतलब जितने भी टाइप की डिजीज है उसमें मोस्टली मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन, किसी को हुआ है तो उसके कांटेक्ट से दूसरे को भी हो सकता है. एंड प्रिवेंटिव मेजर में मोस्टली ये क्या है? अवॉइड द इन्फेक्टेड पर्सन एंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन. थैंक यू.